ہے، توقیر والا دین ہے۔ ہر شخص کو مناسب عزت، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے استاد کی عزت بیان کی، باپ کی عزت بیان کی، بوڑھے کی عزت بیان کی، امام کی عزت بیان کی، عالم کی عزت بیان کی۔ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ان پڑھ تھا، سادہ تھا، پر مزدوری کر رہا تھا، حلال کما رہا تھا، ہاتھوں پہ چھالے تھے، قربان جائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ جو حلال کما رہا ہے نا، یہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ اس کا بھی احترام بیان کر دیا، اس کا اکرام بھی بیان کر دیا۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی، اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احترام دیا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ دیکھیے حضور نے اس عورت کی بھی فضیلت بیان کی جس کے گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اس کی بھی فضیلت بیان کی کہ جس گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے پر جلدی چلی جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے کسی بچے کا خدا نخواستہ، اس کی بھی فضیلت بیان کی کہ جس کا خاوند موجود ہے اور وہ خاوند کی خدمت کرتی ہے، اور اس بیوی کی بھی فضیلت بیان کی جس کا خاوند انتقال کر گیا پر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں مجھے وہ عورت نظر آئے گی۔ تو ہر شخص کے لیے حضور نے احترام بیان کیا، اکرام بیان کیا۔ ہم نے چونکہ بدگمانیاں پیدا کرنی شروع کر لی ہیں، تو معاشرے کے اندر بسنے والے لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں مختلف وسوسے آ جاتے ہیں، مختلف وسوسے۔ کسی بھی شعبے کے کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی 2 4 5 باتیں اپنے ذہن میں اکٹھی کر کے، یا کانوں میں کسی نے وہ بات ڈال دی تو ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ گاڑیاں چلانے والے تو بندے ٹھیک ہی نہیں ہوتے، یہ جناب پولیس کے محکمے کے لوگ تو درست ہوتے ہی نہیں، فلانے محکمے کے لوگ تو ہوتے ہی خراب ہیں، ذہن بن جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ادب انسان کے دل سے رخصت ہوتا ہے۔ ہمیں دین نے ادب سکھایا، احترام سکھایا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات بابرکات ہے، ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے بڑوں کا ادب سکھاتے تھے، پر یہ واحد دربار مصطفیٰ ہے کہ جس کے آداب خود رب کریم نے بیان فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آپ کبھی آیت کے انداز پر غور کریں، کہا اے ایمان والو تمہاری آوازیں میرے نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ بندے کی آواز کا کوئی والیوم ہوتا ہے کہ اب 3 پہ آواز ہے؟ ٹیپ ریکارڈر کا تو والیوم ہوتا ہے نا، کہ 1 پہ ہے، 2 پہ ہے، 6 پہ ہے۔ تو آواز کا والیوم ہوتا ہے کہ یہ کتنے پہ ہے؟ آواز تولی جا سکتی ہے کہ میری آواز کا وزن اس وقت 1.5 پاؤ ہے، آدھا کلو ہے، 5 چٹانک ہے، کوئی ہوتا ہے وزن؟ لیکن ہمیں بتایا گیا کہ بالکل وزن نہیں ہوتا، تولی نہیں جا سکتی، ماپی نہیں جا سکتی، پرکھی نہیں جا سکتی۔ لیکن جب تم نے دروازہ رسول پہ آنا ہے تو پھر آواز کو بھی تول کے آنا ہے، پھر لفظوں کو پرکھ کے آنا ہے، پھر جملے مرتب کر کے آنا ہے، پھر ترتیب لگا کے آنا ہے، پھر تم نے وہاں سوچ سمجھ کے بات کرنی۔ عزیز بھائی، ادب، احترام، اکرام، ہم نے نا احترام دینا چھوڑ دیا ہے، تنقید کرنی شروع کر دی، اور باقاعدہ بعض لوگوں نے بے ادبی کے کلچر پروموٹ کیے، انہوں نے جدوجہد کی ہے لوگوں کو بے ادب کر۔ چھوڑو جی، پتہ ہے مجھے فلانے کا بھی، چھوڑو میں جانتا ہوں سارا مایا کا چکر ہے، چھوڑو۔ مجھے تو کئی دفعہ بڑا ہی غصہ آتا ہے بعض چیزوں پہ۔ مسافر ہوں تو سفر کرتا رہتا ہوں، ایک ٹرک والے نے نا پیچھے لکھا ہوا سب مایا ہے، تو چائے پینے کے لیے رکے ہم ایک ہوٹل پہ، تو اتفاق سے وہ بھی ٹرک سے اتر آیا منٹ کے بعد۔ تو میں نے اسے کہا کہ سب مایا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے لکھوایا، واقعی سب مایا ہے، پیسوں کے بغیر کچھ بھی نہیں، سب مایا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے ابا نے جو آپ کے لیے محنت کی، اتنی مزدوریاں کی، پیسے لیے انہوں نے آپ سے؟ ماں نے جو دودھ پلایا تو پیسے لیے اس کے؟ کہنے لگا جی نہیں انہوں نے تو گل نہیں۔ تو میں کہ پھر انہوں نے لے ہی چھڑ کے ماں پہ انہوں کڈ کے مایا ہے، وہ کسی کا تو استثناء کر۔
किसी बंदे का ही नाम ले ले कि नहीं फलाना ठीक है, तूने तो लिख दिया सब ही माया है, सब पैसे का चक्कर। वो किसी को तो माफी दो, कोई तो बंदा ठीक हो तुम्हारी नजर में, कोई भी सही नहीं। इस तरह कैसे हो सकता है? तुम कहते हो कोई ठीक नहीं, और बनाने वाला कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, मैंने बनाई बड़े सोने, तुम्हें ठीक कोई नहीं लगता। बनाने वाला कहता है मेरी तकवीम ही बड़ी आला है, मैंने बड़े सोने बनाए हैं, तुम देखो तो सही, इंसान मेरा शाहकार है। अब आप देखें कि जब आप ज़हन बना लेंगे कि दुनिया गलत है तो बेअदबी करेंगे, लेकिन अगर ज़हन बनाएंगे कि ये मखलूक है और बनाई है मेरे रब ने, और बड़ी सोहनी करके बनाई, और बड़ी हसीन करके बनाई, और बड़ी आला करके बनाई। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक। वो कहता जैसी सूरतें मैंने चाही ना वैसी मैंने बनाई। ये तेरा चेहरा नहीं है, ये तो रब की चाहत है, ये तो रब की चाहत है, अल्लाह की चाहत है। तू जो है तो तू एहतराम ही नहीं कर रहा। एहतराम करें, अपने बड़ों को इज्जत दें और सबको एहतराम दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आलिम को इल्म की वजह से, बुजुर्ग को उम्र की वजह से, और अपने हुक्मरान को ओहदे की वजह से इज्जत दिया करो। इनको एहतराम दो। आप हर शख्स का उसके मनसब के लिहाज से देखें। एक होता है बातें करना, बातें करने में भी कोशिश करें पहले किसी बुजुर्ग की सुने, किसी बड़े की सुने। ये जरूरी नहीं कि बुजुर्ग पढ़ा लिखा ही हो, कई दफा ये भी होता है कि वालिद साहब अनपढ़ हैं, बेटा इंजीनियर हो गया है। अब कोई बंदा रिश्तेदार था, उसने मशवरा मांगा है कि मैंने ये मकान बनाना है, छत डालना है, तो मैं 10 फुट पे डाल लूँ या 14 फीट पे डालूँ। तो वालिद साहब मशवरा देने लगे थे, तो अगर बेटा बोल पड़े कि अब्बा जी आप तो पढ़े नहीं, मैं तो इंजीनियर हूँ, आप चुप कर जाएं, तो मेरे ख्याल में ये उसकी बेअदबी है। उसको चाहिए था वालिद साहब को बात कर लेने देता, और बात कर लेने देने के बाद फिर वो कहता कि जनाब आप भी ठीक कह रहे होंगे तजर्बे की रोशनी में, पर जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने सीखा है और जो मेरे समझ में आया है वो ये है। कुछ लोग ज्यादा समझदार हैं, वो बोलने नहीं देते, तो सारी बातें कर जाते हैं, खुद ही सब कुछ बयान कर जाते हैं। सवाल भी अपना, जवाब भी उनका अपना, मुआशरा पढ़ा भी उन्होंने सारा ही है, समझ भी उन्हें सारी है, यानी सारी बात ही खुद सुना के वो कहते हैं जी वैसे हमें पता तो है, होना तो यही है, पता तो हमें है होता क्या है, लेकिन चले आए हैं तो आप भी कुछ बता दें। तो कई दफा दिल करता है कि बंदा उनसे कि मियाँ जब सारा पता ही है तो फिर फैसला भी ले लेना चाहिए था, फिर आपको कोई डिसीजन कर लेना चाहिए था, फिर कहीं आने जाने की जरूरत क्या थी। ये चीजें इंसान को अखलाकी कमजोरी में मुब्तला करती हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए समझाते किस तरह से हैं। 3 सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हजरत सैयदना मुईसा बिन मसूद, हजरत खवैसा बिन मसूद, हजरत अब्दुर्रहमान बिन सहल। हजरत अब्दुर्रहमान बिन सहल जो थे वो इन सब से ना उम्र में छोटे थे, ये 2 बड़े थे। तो अब्दुर्रहमान बिन सहल थे छोटे, पर उन्होंने बात पहले करनी शुरू कर दी, और जब वो बात पहले गुफ्तगू शुरू कर रहे थे और गुफ्तगू बढ़ बढ़ के करना चाह रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, ख्याल कर रहे थे कि मुझे बात पहले करनी चाहिए, बात ही करनी थी ना, कोई अर्ज नहीं है, पहले छोटा कर ले, कोई मसला। अगर आप दूसरे नुक्ता नजर से देखेंगे तो कोई हर्ज तो नहीं, ठीक है पहले छोटा बात सुना ले। बहू नहीं बोलने देती कई दफा, वो कहती पहले मेरी सुनो। दामाद नहीं बोलने देता, उसकी मर्जी है। बच्चे बेटे नहीं बोलने देते, वो कहते हैं अब्बा जी आप तो थे ही नहीं, हमें ज्यादा पता है। बोल पड़ते हैं, क्या किया जाए। लेकिन 3 सहाबा आए हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन सहल छोटे थे, उन्होंने बात हुजूर को पहले सुनानी चाहिए। हुजूर तो सबके नबी है ना, और सरकार ने तो सब पर करम नवाजी करनी है, सुननी है। वो पहले सुनाने लगे तो हुजूर ने रोक दिया, फरमाया आप जरा ठहर जाएं, अभी आप बात ना करें, पहले बड़ों को बात करने। ये तालीम बयान फरमाई कि गुफ्तगू में बड़ों को पहले मौका दिया जाएगा। बड़े क्या कहते हैं उनकी बात पहले सुनी जाएगी, उनसे पहले पूछा जाएगा कि मामला क्या है। हम बुजुर्गों को मौका ही नहीं देते। मैं बड़े दर्द के साथ ये बात अर्ज करता हूँ, हमारे नौजवानों ने ना बुजुर्गों को रिटायर करके कोनों के साथ लगा दिया, कोई मशवरा नहीं करते।
फैसले करके बताते हैं। अगर बुजुर्गों की राय कभी ली जाए, मेरे अब्बा जी कभी शाम को निकलते वक्त मैं या मेरा कोई भाई कहता ना काम से जा रहे हैं, तो वाले साहब फरमाया करते पूछ के चले हो के 10 के चले हो? नहीं समझ आई बात। पूछ के चले हो के? तो वो पूछते अब्बा जी ये पूछ के 10 के दा की फर्क है? तो वाले साहब फरमाते कि पूछ के जाने का मतलब है कि जे तुसी इजाजत देंदे हो तो जाइए। कहने पुत्र फिर शायद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आखा कि रात पै गई है, शाम हो गई है, मेरा दिल नहीं, तुसी बाहर निकलो। तो जे तुसी सिर्फ 10 के चले हो तो फिर असा की कर लेना है? फिर तो तुसा फैसला कर लिया। हुण तुसा आजकल बूढ़े चुप कर गए हैं। मैं दर्द से बात करता हूँ, बुजुर्ग खामोश हो गए इसलिए कि बच्चे पूछ के नहीं जाते, बच्चे बता के जाते हैं। वो कहते हैं मैं जा रहा हूँ, उन्होंने फैसला कर लिया, तय कर लिया है जाना है। अगर कभी इनसे पूछा जाए, अगर इनको एहतराम दिया जाए, मैं बड़ी दफा कहता हूँ फिर कहता हूँ कि शागिर्द पुजारों पे बैठा हो ना और पीएचडी कर गया हो और उस्ताद मैट्रिक पीटीसी हो और अभी भी साइकिल ही चलाता हो, तो आए कभी रास्ते में मुलाकात हो जाए शागिर्द की उस्ताद से और शागिर्द पजारो साइड पे खड़ी करके अपने उस्ताद साहब को पहले सलूट करे और फिर वो कहे कि उस्ताद जी लड़का ले आता है साइकिल, आप पजारों पे बैठे, मैं घर छोड़ आऊँ आपको। उस्ताद साहब ने जाना बाद में साइकिल पे ही है। उनका नहीं बेटा अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुझे और लंबी उम्र दे, अल्लाह तुझे और तरक्कियां दे। उसने साइकिल पे ही दोबारा बैठना है। महसूस होता है कि मेरा साइकिल पजारों से महंगा है, क्योंकि पजारों तो सलूट करती है मेरे साइकिल को। लेकिन अगर कभी गरीब उस्ताद के करीब से अमीर शागिर्द गुजर जाए तो तकलीफ जरूर होती है कि यार तू तो मेरे पास सामने पट्टी पे बैठ के पढ़ता था और आज तू कहां पहुंच गया। जब हम एहतराम करते हैं तो सोसाइटी में कदरें बढ़ती हैं यार। लोगों को क्या क्या मसलन फर्क पड़ेगा अगर आप अम्मा को राजी कर लें? क्या होगा? मां बेचारी की सारी जिंदगी पर्दे डालते बीत गई। अब्बा ने आके पूछा कहां गया वो कहती इधर ही था, मुझे बता के अभी आ जाएगा, वो मुझे कह गया था कि मैं नहीं इधर ही था, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। सारी जिंदगी पर्दे डालते बीत गई। अब्बा कई दफा घर में लड़ाई की, बेटे को मारा, अम्मा ने आगे बढ़ के पुत्र के हिस्से की मार भी खाई। लेकिन उसी बेटे की शादी कर दी तो अम्मा को पता चला कि ओहो मैं तो समझदार ही नहीं थी, मेरा तो पुत्र मुझे कह रहा है अम्मा तू भी तो कभी सियानी हो जाया करना, अगर वो बोलती है तो तू ही चुप कर जा। तो फिर उसे एहसास होता है कि ओहो मैं तो सारी जिंदगी बेवकूफ रही, मैं तेरा दिफा करती रही, तेरे हिस्से के थप्पड़ खाती रही, और मुझे आज तूने बताया कि तू सियानी नहीं थी, आज तूने बताया कि तू अक्लमंदी नहीं थी। अम्मा तुझे क्या पता, मेरी बीवी के सामने तू ही सियानी हो जा। वो टूट जाती है, बिखर जाती है। वो कभी पलट के देखती है तो उसे बड़े सारे जख्म ताजे होके दिखाई देते हैं। वो यार मैं ही सियानी नहीं थी। सुनो ना, इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इमाम हसन ने कोई लंबा वक्त नहीं अपनी वालिदा के साथ गुजारा, छोटे थे तो सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा विसाल कर गई। पर शेर खुदा के पुत्र की बात देखें, इमाम हसन कहते हैं लोगों मैं जब थोड़ा सा बाशऊर हुआ और मुझे चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देने लगी तो मैंने कभी अपनी अम्मा के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाया था। हुजूर सारी दुनिया खाती है तो आपने क्यों नहीं खाया? तो फरमाते डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस लुकमे की तरफ मेरी माँ अपना हाथ बढ़ाए कहीं मैं ना उठा लूँ, बेअदबी ना हो जाए। डर लगता था। मैंने यहाँ तक भी ना, क्योंकि माँ तो माँ होती है, मैंने यहाँ तक भी माँ का एहतराम किया, रोटी खाने में भी तकदीर नहीं की। यहाँ माँ वो कहती है पीर साहब उन्हें दस्या जे ना कि मैं तुहानू आख्या सी, उन्हें गल्लां गल्लां च उन्हें आख्या जे मेरे नाल बोले तो सही करे, उन्हें दसियो ना मेरे नाल बिगड़ जाएगा। आख्या जे ना मैं तुहानू शिकायत ले, पर ना
ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ तकलीफ। ਉਹਨੂੰ आखियो ना ओ यार क्या कायनात में हुजूर से बड़ा भी कोई है, लेकिन हजरत हलीमा सादी आई है तो क्या मेरे नबी उठ के खड़े नहीं हो गए? हुजूर ने इकराम दिया तो इकराम देने से कद बड़ा होता है, छोटा तो नहीं होता। खुदारा अपने बड़ों का इकराम करना सीखें। इन्होंने किसी ने आपको जगह दी होगी, किसी ने आपको नौकरी दी होगी, लेकिन माँ बाप ने तो जिंदगी दे दी औलाद को, जवानियां दे दी, सारा कुछ दे दिया। और बच्चे हैं कि समझते नहीं। एहतराम के जज्बे अपनी तबीयत में लाएं, बेअदब न बने, सुबह अदब न कभी करें। आप ना कभी कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे ना तकलीफ बढ़े, जिससे आजमाइश बढ़े। आप एहतराम वाले रहेंगे तो खुद भी सजे संवरे निखरे रहेंगे। अपने बुजुर्गों को पहल करें बुजुर्गों की तरफ, यानी आप घर के अंदर छुपा के सेब अपने कमरे में ना लेके जाएं, छुपा के चीजें ना रखें, बल्कि पहल करें बूढ़े अब्बा से, पहल करें अपनी वालदा से, वहां से आगाज करें। आप देखें बरकतें कितनी होती हैं। मैं कुछ बातें मुझे लुत्फ देती हैं। मेरे कुछ संगी हैं, 3 भाई हैं, इकट्ठे मुझसे बैत हैं, मेरे साथ बड़ा प्यार का रिश्ता है। तो कभी कभी ना खिदमत करने का दिल करता है उनमें से किसी का कि चलें हजरत साहब आए हैं तो हम कुछ नजराना पेश करें। तो अपने बड़े भाई को वो थमाते हैं कि जनाब आप ये काम करें। अल्लाह ताला का शुक्र है मेरी जेब कम ही खाली रहती है, उसका फजल रहता है, लेकिन वो पैसे लेने से ज़्यादा या तोहफा लेने से ज़्यादा या फूल पकड़ने से ज़्यादा इस बात की मुझे खुशी होती है कि कितने निराले हैं। बड़े को आगे लगाते हैं तो बरकत तो हासिल करते हैं, इसलिए कि बरकतें हमेशा बड़ों से होती हैं, बड़ों से हमेशा बरकतें। ये फूल का तोहफा बड़े भाई को दे के जब आगे किया जाता है तो मेरे दिल को अच्छा लगता है, मुझे करार आता है कि यार ये लहजा ठीक है, ये अंदाज ये ठीक है। अपने बड़ों को आगे रखें, बड़ों को कलाम करने का मौका पहले दें, घर में कोई चीज लाएं तो तकदीम करें। हमारे यहाँ ना अब जो उस्तादी शागिर्दी आई है ना, ये बड़ी खतरनाक है। हमारे एक कारी साहब थे, एक मदरसे में पढ़ाते थे, बड़ा मारा करते थे और मैं उन्हें मजाक भी करता था, कभी कभी अजराए मोहब्बत मजाह करता था। मैं उनसे कहता था कारी साहब आप शायद मार खा के पढ़े इसलिए बच्चों से बदला ले। तो कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले मुलाकात हुई तो मैं उनके इदारे के करीब से गुजर रहा था, तो मैंने उनका ना वो डेस्क वगैरह चेक किया तो उनके पास ना छोटी लैदा होती थी, पाइप 2 किस्म के लैदा होते थे, पानी वाला लैदा और गैस वाला अलहदा। बड़ा मारते थे बच्चों को। मुझे भी इख्तलाफ था इस बात से, मैं उनको गुजारिश भी करता था। तो मैं गया तो वो जिस तरह वो खैर उस्ताद कमाल के थे, उन्होंने बड़े कामयाब हाफिज तैयार किए और वैसे भी बंदा बड़ा बासूल, बड़े अच्छे, बड़े नफीस। मैंने उनसे कहा कि वो खैर है, मतलब छोटियाँ छोटियाँ किधर गई आपकी? कहने लगे हज़रत साहब ना शागिर्द रहे ना उस्ताद रहे ना वो माँ बाप रहे। कहने लगे पता नहीं 2-4 सालों में क्या हुआ है। तो मैंने कहा आपको तो कोई मनाकारी नहीं, मैंने कई दफ़ा समझाया था, आप बाज नहीं आते। कहते थे अब आ गया हूँ, इसलिए कि कुछ छड़ी मार रहे होते हैं तो दूसरा साथ वीडियो बना रहा होता है। पहले तालिब इल्म इस तरह की तौहीन का रवैया उस्तादों के साथ नहीं करते थे। वो कहते थे जैसे भी है फैज़ उस्ताद से लेना है। अब आप जरा घूर के देखें तो कहते हैं लाओ किताबें, जा रहा हूं बड़े मदरसे, बड़े कॉलेज, बड़े स्कूल। मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि हमारे बड़े कहते थे, कभी घर आके बताते ना उस्ताद जी ने मारा है, तो कहते थे किसी गलती से मारा होगा। और इस तरह के सख्त लफ्ज़ बोलते थे कि हमें लगता था कि हमारे बुजुर्ग हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो कहते थे कि मैनू हड्डियां चाहिए ने पढ़े होवे। ये लफ्ज कर कहते थे मेरे अब्बा जी मेरी अम्मा, हड्डियां दे आज सानू पर दे आज पढ़िया। अब क्या माहौल है, डर आता है, बच्चे घूरते हैं। उनकी अम्मा आके कहती है तू 8,000 का मौलवी है, मेरा 1.25 करोड़ का बच्चा है, तेरी ताकत कैसी हुई चौधरी के बच्चे को हाथ लगाने की? इतनी तेरी जरूरत के मैंने मेरे बेटे को हाथ लगाया है? करूंगी ना कल बंदे इकट्ठे तेरी कराऊंगी छोटी मस्जिद से। तू इतनी तेरी ताकत के तू मेरे बच्चे को मारे। हमने ना प्रमोट की चीजें, प्रमोट।
حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ادب نہ ہو تو علم آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کتابیں رہنمائی کرتی ہیں، کتابوں کی ترجمانی تو استاد نے کرنی ہے۔ تو اگر آپ وہ احترام ہی نہیں ہے، وہ طبیعت ہی نہیں ہے، وہ ذوق ہی نہیں ہے، سیکھنے کا وہ خاص جذبہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے لوگ بڑے بڑے درویشوں کے پاس جا کے خالی آتے ہیں، حضور کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ کشکول سیدھا نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات آیا نہیں کرتی، ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہ ہو تو وہ تو جو دینا وہ بھی نیچے گر جاتا ہے۔ احترام، ایک شخص نے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے زیارت کرنی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں نے ان کو پہلے دیکھا نہیں ہوا، تو مجھے بتائیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے پہچانوں گا؟ تو ابن عساکر دیکھیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو مدینہ شریف جانا، ایک شخص لوگوں کے حلقے میں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوگا، مسجد نبی میں وہ چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کر رہا ہوگا، اور فرمایا اس کے ارد گرد لوگ اس ادب سے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے۔ فرمایا جب وہ نورانیت والا ماحول تم دیکھو اور اتنے با ادب شاگردوں کے بیچ بیٹھی ہوئی ایک نورانی ہستی کو دیکھو تو سمجھ لینا وہی حسین ابن علی ہیں، وہی ہے امام علی مقام امام حسین، کہ جو اس احترام کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے آداب سکھائے ہیں، اس طرح انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ ان کے شاگردوں کا یہ رنگ ہے کہ وہ تو سر نہیں ہلاتے کہ کہیں پرندہ نہ اڑ جائے۔ اس انداز میں جب لوگ، مجھے بات یاد آ گئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ